Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for Add Code a Beginner Contest 232 problem A to D. Okay, so firstly in problem A QQ solver you are given a 3 character string S where concatenation of integer A and B between 1 to 9 and the character X is in this order A multiply B. Okay, तो ये एक string के form में given है and you have to simply print product of A and B. Okay, so this question is easy. What you can simply do is you can simply take first character and last character of a string and simply multiply those. Okay, so this was question A. Problem B, Caesar cipher. So Takahashi has a string S consisting of lowercase English letters. On this string he will do the operation below just once. Okay, choose a non-negative integer k, then shift each character of S to the right by k. Okay, so like A shifted to the right by 1 is D, y shifted to the right by 1 is z, and z shifted to the right by 1 is a. Okay, so here circular भी तुम शिफ्ट कर सकते हो, दैट इज z को अगर बाय 1 से शिफ्ट करोगे तो a आएगा, बाय 2 से तो b, बाय 3 से तो c. ओके, फॉर एग्जांपल b शिफ्टेड टू द राइट बाय 4 इज f. सिंपल सी चीज है. You are given a string t, determine whether Takahashi can make s equals to t by one operation or not. Okay, so you have two strings, you have to check whether s can be converted to t by shifting all the characters by k. If there is a non-negative integer k exists, just simply print yes, otherwise print no. Okay, like in this example a b c, all these characters are shifted by 8, so we can say that k is equals to 8 and it will simply become equals to ijk. Okay, so you can simply take a string like this a to z and then again a to z. Okay, now अगर तुम्हारा a और b, सपोज तुम्हारे पास दो strings हैं s and t. Okay, and in s you have some characters a b c and i j k. Okay, अब a तुम्हारा i में जाने के लिए कितने शिफ्ट करेगा, तुम सबसे पहले ये निकाल लो, लाइक a को i में जाने के लिए कितने शिफ्ट लगेंगे. ठीक है, फिर b को j में जाने के लिए, c को k में जाने के लिए, एंड ऑल दोज वैल्यूज आर इक्वल और नॉट. सिंपली इफ इक्वल है तो प्रिंट यस, अदरवाइज नो. ओके, नाउ सी क्वेश्चन, ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म. ओके, यहाँ से क्वेश्चन ठीक है. Takahashi and Aoki each have a toy made by attaching m chords to n balls. Okay, in Takahashi's toys, the balls are numbered from 1 to n and the ith chord ties ball ai and bi. Similarly, in Oki's toy, the balls are from 1 to n and ith ball chord ci to di. Okay, you can say that this is a complete graph with n nodes and this is edges. In each toy, no chord ties a ball to itself and no two balls are tied by two or more different chords. Okay, so this is simply a statement that there is no self loop and there are no cycles. Snook is wondering, no, there can be cycle but no two balls are tied by two or more different chords. Okay, so there can be no two edges joining same two balls. Okay, Snook is wondering whether the two toys have same shape or not. Okay, तो एक एग्जांपल देखो, अगर सपोज ये हमारा टेस्ट केस था एंड वी हैव दीज टू टॉयज, दिस वन इज ऑफ Takahashi and this is Oki's. Okay, now Snook is wondering whether these two toys are same or not. Okay, now how can you check whether these two toys are same or not? Here they are said to have same shape when there is a sequence p. If there exists a sequence p that satisfies the condition below, p is a permutation of 1 to n. Okay, such that p is a permutation of 1 to n. For now, for every pair of ij between 1 to and n, the following holds: balls I and j in Takahashi's toys are tied by a cord if and only if pi and pj in Oki's toy are tied by a cord. Okay, if the two toys have same shape, print yes, otherwise no. तो मैं थोड़ा सा अभी क्वेश्चन जनरलाइज करता हूँ. ठीक है, तुम्हें कैसे चेक करना है वेदर टू टॉयज आर सेम और नॉट. ओके, यू हैव टू चेक इट बाय सिंपली सपोज देयर एग्जिस्ट अ परमुटेशन 1 2 3 4. ओके, ये एक परमुटेशन है n इज इक्वल्स टू 4 का, फ्रॉम 1 टू n. अब वो बोल रहा है कि सपोज ये ताकाहाशी का टॉय है 1 2 3 4. ओके, नाउ हेयर एग्जिस्ट edge between 1 and 3. Okay, तो
आई और जे क्या हो गया सिंपली 1 and 3। अब फर्स्ट और थर्ड इंडेक्स में जाओ, पी आई और पी जे निकालो, दिस एंड पी जे कितना है दिस। अगर इन दोनों के बीच में एक एज है तब तो ये वाली एज जो है ये पॉसिबल है। अगर इन दोनों के बीच में एज नहीं है, इट मीन्स these two toys आर नॉट सेम। ओके, तो ये कुछ ऐसा एक केस है, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल समझते हैं। सपोज आई हैव, यहाँ पे इनका जो परमुटेशन है वो है 3 2 1 4। ओके, सिंपल। नाउ सिंपली चेक, वी हैव अ एज इन Takahashi's toys between 1 and 2। Now go to first and second index, that is 3 and 2। Now check in Oki's toy we have a edge between 3 and 2 or not? We have a edge, okay, between 3 and 2। Now again we have a edge 1 and 3। Now go to first index and third index, 3 and 1। Now check whether we have a edge between 3 and 1 in Oki's toy or not? Yes, we have a edge, okay, simple। Now there is a edge 3 to 4। Now check third and fourth index, that is 1 and 4, whether there is a edge between 1 and 4 or not? Yes, we have a edge between 1 and 4। सिंपल सी चीज़ है, ओके। इसी तरह हमें सारी एजेस के लिए फ्रॉम Takahashi's toys चेक करना है whether PI and PJ has a edge in Oki's toy or not। If all the edges are confirmed, we can simply print yes, otherwise no। Now second thing, how are we going to check whether कौन सा परमुटेशन हमारे ये जो ग्राफ है इसको सेटिस्फाई करने वाला है, कैसे हम ये चेक करने वाले हैं। तो ये था मेन चीज, ओके। नाउ जस्ट गो टू द कंस्ट्रेंट्स, यू कैन सी दैट वैल्यू ऑफ n इज 8 मैक्सिमम, ओके। सो व्हाट इफ वी बिल्ट ऑल द परमुटेशंस और वी विल चेक फॉर ऑल द एग्जिस्टिंग परमुटेशंस ऑफ लेंथ 8, ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितनी है 8। तो अगर मैं 8 के ऑल द परमुटेशन निकालूँ तो वो कितने होंगे, फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू होती है इतनी, ओके, 40,320 मैक्सिमम वैल्यू। तो इन मैक्सिमम मुझे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने चेक करने पड़ेंगे, 8 फैक्टोरियल। एंड फिर उन ईच परमुटेशन में मुझे इटरेट भी करना पड़ेगा, ओके। तो उन ईच परमुटेशन में इटरेट करने के लिए 8, मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है 8। तो समवेयर कंस्ट्रेंट्स मेरे पास टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी हो सकती हैं 40,000, बड़ा, ठीक है। एंड फिर मुझे हर एक एज के लिए चेक करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी हो सकती हैं, n(-1/2) कंस्ट्रेंट्स में गिवन है, और n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो सकती है मैक्सिमम 64। तो मेरे कंस्ट्रेंट्स कुछ, अगर मैं सारी परमुटेशंस के लिए चेक करूं, आई कैन डू दैट इन दिस मच कंस्ट्रेंट, ओके। सो आई हैव डन सेम थिंग, I have generated all the permutations first, obviously of length n, and after that what I will simply do, I will check for each permutation whether this current permutation can be a valid permutation or not, okay. If it can be a valid permutation, I will break from here and I will simply print yes, otherwise in the end I will simply print no, okay. Now I will show you the code for this okay. So here's the code. In vector v I will store all the permutations of length n in a string form, okay. अगर तुम्हें सारी परम्यूटेशन जनरेट करने का कोड चाहिए, यू कैन सिंपली चेक GFG, यू विल गेट इट देयर, ओके। नाउ कम हियर, मैंने क्या किया, सिंपली nm का इनपुट ले लिया, ठीक। देन एक स्ट्रिंग में मैंने लिया n लेंथ की वैल्यू 1 2 3 4, सपोज n इज 4 राइट नाउ, सो मैंने स्ट्रिंग में 1 2 3 4 स्टोर किया, ठीक है। देन मैंने सारी परम्यूटेशंस ऑफ लेंथ n के लिए ये फंक्शन कॉल कर दिया, परम्यूट s एंड आंसर। नाउ व्हाट दिस विल सिंपली डू इज, दिस विल स्टोर ऑल द परम्यूटेशंस ऑफ लेंथ n इन दिस वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग। आई विल अगेन गो एंड टेक एन अनऑर्डर्ड मैप, ओके। अब अनऑर्डर्ड मैप में यहाँ पे मैंने क्या लिया है, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ अनऑर्डर्ड मैप, ओके। सो now what I will simply do is, in Aoki's or in Takahashi's graph, ठीक है, अगर मेरे पास x और y के बीच एक एज है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली अनऑर्डर्ड मैप में m ऑफ x एंड y मार्क कर दूंगा बाय 1, ओके। तो मैं O of 1 में चेक कर सकता हूं whether I have this edge or not,
ओके, तो मैंने सिंपली क्या किया, ताकाहाशी की जितनी भी एजेस थी वो सारी वेक्टर में स्टोर करा ली और फिर ओकीज के ग्राफ में गया एंड सारी की सारी एजेस मार्क कर ली मैंने, ठीक है, m2 ऑफ एक्स वाई। नाउ इंट केस इक्वल्स टू, ये एक फ्लैग ले लिया मैंने, फिर अपने सारी एजेस में इटरेट किया। ओके, तो ऑब्वियसली व्हाट आई विल सिंपली डू, नाउ आई हैव टू गो टू दिस ग्राफ एंड फॉर ईच एज आई हैव टू चेक वेदर पी आई और पी जे के बीच में एज है या नहीं। ओके, तो मैंने उस वेक्टर में सारी एजेस इटरेट की, ये एक और फ्लैग लिया मैंने, अगेन अपनी करंट परमुटेशन में गया, ठीक है, सारी की सारी परमुटेशंस, फिर अपने करंट एजेस में गया, मैंने P1 और यू कैन से PI एंड PJ की वैल्यू ली एंड आई विल सिंपली चेक वेदर PI और PJ के बीच में एक एज है या नहीं, दैट इज M2 ऑफ P1 P2 इज इक्वल्स टू 1 या फिर P2 P1 इज इक्वल्स टू 1। आई विल सिंपली कंटिन्यू फ्रॉम हेयर एंड इफ देयर इज नो एज बिटवीन PI एंड PJ I will simply mark the flag as 1 and break from here, ठीक है, and I will check for next permutation. In the end अगर मुझे कोई भी permutation healthy मिलती है, healthy permutation, I will simply mark the outer flag and print yes from here. And अगर मुझे कोई भी healthy permutation नहीं मिलती, I will simply print no from here. Okay, so this was a code for C question. Now let's see D question. So D was comparatively easy. Standard question था, you can say. There is a h cross s square grid with h horizontal rows, 2D matrix है, okay, and each square is described as a dot or a hash. Okay, Takahashi is about to start walking in this grid. When he is on ij, he can go to its right shell or down shell. However, he cannot exit the grid or enter a wall square. Okay, तो obvious है he cannot exit the grid और इंटर अ वॉल स्क्वायर, जिसमें वॉल है उसमें नहीं जा सकता है। ही विल स्टॉप व्हेन देयर इज अ नो मोर स्क्वायर टू गो। व्हेन स्टार्टिंग ऑन 1 1 एट मोस्ट हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन ताकाहाशी विजिट बिफोर ही स्टॉप्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है एंड कंस्ट्रेंट्स वी हैव 100 क्रॉस 100 मैट्रिक्स। ओके, तो एट मैक्सिमम वी कैन हैव 100 क्रॉस 100 मैट्रिक्स। नाउ व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग दैट वी हैव अ 2D मैट्रिक्स। ओके, इसमें से कुछ शेल डॉट हैं, कुछ शेल हैश हैं, ये, और यहाँ पे इनिशियली ताकाहाशी है, ठीक है, यहाँ पे है एंड सम शेल्स आर डॉट, सम आर हैश। तो यू हैव टू सिंपली टेल, यू हैव टू सिंपली टेल कितना मैक्सिमम पाथ वो यहाँ से ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो सपोज इस वाले एग्जांपल में देखें तो वो कैसे जा सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इन दिस वे यू कैन से 6। तो अब सिंपल सा वैल्यू है, सिंपल सी चीज़ है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, n क्रॉस n की एक मेरी मैट्रिक्स है एंड मैं बैक ट्रैकिंग करके इसका आंसर निकाल सकता हूँ। व्हाट आई विल सिंपली डू, आई विल मेक अ, सबसे पहले तो इसमें ये देख लेते हैं कि dp लगेगी, पर क्यों लगेगी। ओके, सिंपली थिंक कि मैं इस शेल में, मेरे पास आने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। राइट नाउ ये शेल हैश वैल्यू है, बट अगर ये होता, ठीक है, तो इस शेल में आने के मेरे पास दो तरीके हैं, आई कैन कम फ्रॉम हेयर एंड आई कैन कम फ्रॉम हेयर। ओके, बट ऑब्वियसली आई विल कम फ्रॉम दैट शेल जहाँ पर पहुँचने की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। सपोज मैं ऐसे आता, ठीक है, ऐसे अगर आता तो इस शेल में आने की कितनी वैल्यू हो गई, दो स्टेप लगे मुझे, एंड इस शेल में आने के भी मुझे कितने स्टेप लगे, 2 सिंपली, ठीक है। तो राइट नाउ अगर मैं इस शेल में आऊँ, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, इक्वल वैल्यू लगेगी, बट इन एनी केस सपोज यहाँ तक आने की मुझे 3 वैल्यू लगती, तो ऑब्वियसली आई वुड हैव गॉन थ्रू दिस पाथ, ठीक है, बिकॉज यहाँ तक आने के फिर कितने हो जाते, 3 + 1 4, एंड इससे आता तो 2 + 1 3, so that's why I will choose this path. In the same way, for every shell I can have 2 choices. Okay, मेरे पास 2 choices हो सकती हैं and I have to choose obviously greater one to maximize my answer. Okay, so in this way you can simply say that I have multiple choices and I have to maximize my answer. That's why I can say that we will use DP here. Okay, अब किस वे में, तो सिंपल सा
तरीका है, कैसे कर सकते हो तुम। अब ये देखो, सपोज मुझे कहाँ पे आना है एग्जैक्टली, अगर मैंने जैसे अभी यहाँ पे डिफाइन किया था दैट यू वांट टू कम इन दिस शेल, अगर तुम यहाँ तक का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो तो तुम इस शेल से कहाँ कहाँ जा सकते हो, इसमें और इसमें, तुम इन दोनों की वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। और अगर सिंपली तुम यहाँ से चलो, सपोज लास्ट शेल से चले, ठीक है, तुमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है ऑलरेडी, तो तुम इसकी वैल्यू, सॉरी इसके अपर शेल की वैल्यू और इसके लेफ्ट शेल की वैल्यू अपडेट कर सकते हो। कैसे? इसके राइट वाले शेल की वैल्यू और लेफ्ट शेल की वैल्यू और अपर शेल की वैल्यू। तो इसी तरह हम हर शेल के लिए उसके प्रीवियस कैलकुलेटेड वैल्यूज से +1 करके अपडेट कर देंगे एंड एट द एंड मुझे इसमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो आई विल शो यू द कोड, कोड में ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सपोज ये मैंने इनपुट वैल्यू ले ली और ये मैंने dp n क्रॉस n बना ली, क्योंकि मुझे dp ऑफ ij क्या देगी, मैक्सिमम वैल्यू वहाँ तक आने की, ठीक है। एंड फिर मैंने स्ट्रिंग में इनपुट ले लिया, आई सिंपली स्टार्टेड फ्रॉम n-1 एंड m-1 शेल टिल मैं 0 0 में नहीं पहुँच जाता, वेयर dp ऑफ 0 0 विल बी माई आंसर, कि मैंने कितने स्टेप्स लेके dp ऑफ 0 0 में पहुँच सकता हूँ n-1 m-1 से। तो आई विल सिंपली चेक इफ़ s of I and j is hash, I have to simply continue from here, मुझे कुछ नहीं करना। अदरवाइज मैं अपनी dp of ij को कैसे अपडेट कर सकता हूँ, वेदर मैं dp of ij में कहाँ से आया हूँगा, या तो मैं ij+1 से आया हूँगा या तो i+1 j से आया हूँगा सिंपली, ठीक है। एंड +1 फॉर करेंट स्टेप, ठीक है। तो सिंपली अपडेट dp of ij with this and at the end you will be having your answer in dp of 0 0. If you have any doubt in this question or in any other question, you can simply ask me in comment section. I will explain you again. Thank you guys for watching this video. Like this video and subscribe this channel. Thank you guys for watching.